Hello dear students, this is your teacher Sachin Khurana and today we will discuss about the condition of occupational structure of India during the British rule. We can see here the occupation is being divided into three sectors, the primary sector, secondary sector and the tertiary sector. The contribution of primary sector till 1951 in India was around 72.7%, secondary sector was 10.1% and the contribution of tertiary sector was 17.2%. We can see this pie chart also. Such pie charts can come in the examination or tables can come in the examination for analysis. Let us talk about the regional variation. Agriculture sector was the major sector in terms of share of workforce absorbed in it. Still, there were regional variations. Then the parts of the then Madras Presidency, which comprising the states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, and Kerala. Besides this, Bombay and West Bengal, it witnessed a decline in the workforce in agriculture sector and showed an increase in manufacturing sector and service sector. Now let us discuss the state of infrastructure during the British rule. The first was roads. Understand my point that the Britishers developed the roads just for their own benefit to the nearest railway stations ताकि वो पोर्ट तक रॉ मटेरियल को पहुंचा पाए और पोर्ट से रेलवे स्टेशन तक और आगे जहाँ पे भी रेलवे नेटवर्क है वहां पर अपने फाइनल कंज्यूमर गुड्स पहुंचा पाए. All weather roads were missing. Railways. Railways were first introduced in India by the Britishers in 1850. This was one of the most important contributions by them. The role of railways was that it enabled to travel long distances by the people. It fostered commercialization of Indian agriculture and the social benefit of which Indian people gained owing to introduction of railways were outweighed by country's huge economic loss. क्योंकि जो भी बेनिफिट आ रहा था वो क्या था, या तो इंडिया एक्सपोर्टर बन गया था प्राइमरी प्रोडक्ट्स का या वो इंपोर्टर बन गया था फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स का. एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ओडिशा कोस्ट इन्होंने डेवलप किया जिसपे बहुत पैसे लगाए लेकिन वो फ्लॉप हो गया इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड बीइंग अनइकोनॉमिकल. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन. In 1853, first telegraph line, which was electric telegraph, it was developed, and in 1852, first stamp was released. This was a very popular and aided widely used means of communication. Tata Airlines, a division of Tata and Sons, was established in 1932, inaugurating the aviation sector in India. Now let us understand what were the causes of infrastructure development. वही चीज जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी को डेवलप करना नहीं, ब्रिटिशर्स जो है वो अपने फायदे के लिए अपने प्रॉफिट्स के लिए ये काम कर रहे थे. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड बट यू विल हैव टू पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस एक्सरसाइज आल्सो, राइट. वाज देयर एनी पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? यस, हम कहेंगे. पहला हमें मिला कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं. सेकंड इज डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज रोड्स, रेलवेज, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट. उसके साथ साथ कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ. चेक ऑन फेमिन्स. जब हमारे पास ये चीजें डेवलप हुई तो जहां पर भी फेमिन्स थे या जहां पर भी हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए थी, इन केसेस ऑफ इमरजेंसी ऑल्सो हम इनका बेनिफिट उठा पाए. मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. इंडिया जो है वो बार्टर सिस्टम से यानी कि कमोडिटी फॉर कमोडिटी से चेंज हुआ किसमें, जब हम मनी को एज अ यूनिट ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू यूज कर पाए बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स. इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन करना हमें ब्रिटिशर्स ने ही सिखाया. तो उनके पॉलिसी मेकर्स और पॉलिटिशियंस के जो हैं उनके डिसीजंस, उनकी पॉलिसीज जो हैं वो हमें एज अ रेडी रेकनर जो है हेल्प करती है. साथ में बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2. चैप्टर 2 क्या कहता है? ये बताता है इंडियन इकोनॉमी का स्टेट बिटवीन 1950 टू 1990. दैट इज डिस्कस करने वाले हैं 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, गोल्स एंड अचीवमेंट्स. फर्स्ट हमने पढ़ा था कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो है तब तक इंडियन इकोनॉमी का क्या हाल था. 6 सेक्शंस में हमने इसको कंप्लीट किया. आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 जिसमें हम 1950 से 1990 की बात करेंगे, राइट. 1947 में 15 अगस्त को जब इंडिया आजाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू जी के पास एक इशू था. वो इशू ये था कि इंडिया में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम लगाया जाए. अब इकोनॉमिक सिस्टम वो होता है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, राइट. अब इकोनॉमिक सिस्टम में हम बात करेंगे
कि हमारे पास एक है प्राइवेट इकोनॉमी जिसको हम कैपिटलिस्ट बोलते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर फोकस किया जाता है। लेकिन दूसरा ऑप्शन था सोशलिस्ट इकोनॉमी। लेकिन सोवियत यूनियन में ये जो सोशलिस्ट इकोनॉमी थी उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, उसको हम दूर करना चाहते थे सो दैट वी कैन फोकस ऑन वेलफेयर ऑफ ऑल। तो हम ये विदाउट इट्स ड्रॉबैक सोशलिज्म को यूज करना चाहते थे। एक्सट्रीम वर्जन ऑफ कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को भी नहीं चाहते थे, मिक्स्ड चाहते थे। तो हमने उसको मिक्स करके मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो बनाया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी और डेमोक्रेसी दोनों चीजें रहे और प्राइवेट सेक्टर को भी हक रहे टू बी अ पार्ट ऑफ द प्लान एफर्ट। तो हमारा जो आईपीआर इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन 1948 एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं उन्होंने उसमें यह आउटलुक दिखाया गया। 1950 में प्लानिंग कमीशन जो है वो सेटअप हुआ था और तब से प्लानिंग का एरा या 5 ईयर प्लान्स का एरा हमारे यहाँ शुरू हुआ। हम 1948 में फर्स्ट आईपीआर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जरूर आया था, लेकिन जो मेन इंडस्ट्रियल ग्रोथ इकोनॉमी में आई इंडियन इकोनॉमी में, दैट वाज आफ्टर आईपीआर 1956। अब बात करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम क्या है और टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज क्या है। इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा होता है जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। इकोनॉमिक सिस्टम में सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब यहाँ पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम की, तो तीन होती है, मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिज्म, सेंट्रल इकोनॉमी सॉरी सेंट्रली प्लान्ड या सोशलिज्म, और उसके बाद करेंगे बात हम मिक्स्ड इकोनॉमी की। क्लियर है जी। मार्केट इकोनॉमी वो है जो हम फ्री इकोनॉमी कहते हैं, जिसमें मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो है वो सारी एक्टिविटीज को गवर्न करते हैं। सेंट्रली प्लान में ये सब एक्टिविटीज जो है वो रेगुलेट होती है गवर्नमेंट से, और मिक्स्ड में कॉम्बिनेशन ऑफ दोस। यहाँ पर हम प्रॉफिट पे ज्यादा फोकस करते हैं, यहाँ पे सोशल वेलफेयर पे, और यहाँ पर इसका कॉम्बिनेशन रहता है। देयर इज नो डायरेक्ट इंटरवेंशन ओवर हियर, यहाँ पर सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट कर रही है सेंट्रली प्लान में, और मिक्स्ड में जो है पार्शियल। ठीक है जी। और ये बेटा सारी चीज जो है हम ऑलरेडी अपनी क्लास +1 में पढ़ चुके हैं। यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड इट अगेन एज अ रिवीजन। ये जितने भी फोकस पॉइंट है आपको इसको खुद एक बार स्टडी करना है, ये क्लियर पिक्चर देते हैं कि क्या क्या हम पढ़ रहे हैं उसके लॉजिक के साथ और एप्लीकेशन के साथ। अब बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्लानिंग, और हमें उसके फीचर्स बताने हैं। अ प्लान स्पेल्स आउट हाउ द रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन आर पुट टू यूज। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पर्सपेक्टिव प्लान्स की, जिसका मतलब होता है लॉन्ग पीरियड प्लान्स मोर देन 5 इयर्स। तो जब 20 इयर्स तक जाते हैं हम उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लान। हमारे जो प्लान डॉक्यूमेंट्स हैं वो 2017 तक उन्होंने स्पेसिफाई किया 5 ईयर प्लान्स में व्हाट इज अचीव्ड एंड व्हाट इज नॉट टू बी अचीव्ड। अब बात करेंगे यहाँ पे प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की, दैट इज प्रसंत चंद्र महालनोबिस। ये जो है इनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग बोला जाता है। राइट 1893 में ये पैदा हुए थे और इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कैलकाटा सेटअप किया था और संख्या नाम की एक जर्नल निकाली थी। और आज भी इनका नाम जो है वो बहुत ही महान स्टैटिस्टिशियंस में, जिनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा इंडिया में, उसमें लिया जाता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये है पिक्चर प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की। अब बात करेंगे फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी अंडर प्लानिंग टिल 1991, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 1950 टू 1990 के बीच में। तो पहला आ गया बेटा डिपेंडेंस ऑन पब्लिक सेक्टर। हमारी जो इकोनॉमी थी वो पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा डिपेंडेंट थी इंस्टेड ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ये हमारे पास डाटा आप पढ़ सकते हैं। कंट्रोल्ड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, हम नया लाइसेंस नहीं देते थे अनलेस नई एंट्री नहीं अलाउ करते थे जब तक लाइसेंस नहीं मिलता था, और तब परमिट लाइसेंस राज का इशू होता था। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, इसको हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन भी कहते हैं, कि हम प्रोटेक्ट करें डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फॉरेन कंपटीशन से। प्रोटेक्शन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, के हम इनको लोअर एक्साइज अच्छे बैंक लोन्स दें और जो लार्ज इंडस्ट्रियल फर्म है उनको बेनिफिट ना दें। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, अब हम सिर्फ जूट, टी या कॉटन तक कन्फाइंड नहीं थे, हमने कंज्यूमर गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स जैसे कि ऑटोमोबाइल्स में भी हाथ डाल लिया था। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, अब हम चाह रहे थे कि हम डिपेंडेंट ना रहे दूसरी कंट्रीज पे अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए, और हम मार्केटेबल सरप्लस जो है वो डेवलप कर पाए, अवेलेबल कर पाए, एंड दैट वाज अचीवेबल या अचीव्ड ओनली बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है। प्लीज ध्यान दीजिए क्लास +2 के स्टूडेंट्स, दैट कई बुक्स में 5 हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारे पास 4 ही ऑब्जेक्टिव्स हैं। द वेरी फर्स्ट इज ग्रोथ, सेकंड इज मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। अब यहाँ पे बात करेंगे कि ग्रोथ क्या कहते हैं। ग्रोथ का मतलब है इंक्रीजिंग जीडीपी, जैसे केक का साइज है,
जितने ज्यादा लोग होंगे उतना बड़ा केक चाहिए, तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उतना ज्यादा हमें जीडीपी चाहिए, और वो आएगा हमारे स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन ऑफ इकोनॉमी से। इसका मतलब द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द थ्री सेक्टर्स। अगला आ गया मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन इज स्टडीड बेसिकली इन टर्म्स ऑफ टू मीनिंग्स, दैट इज द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंजेस इन सोशल आउटलुक। लाइक विमेन को हम एजुकेशन दे रहे हैं, विमेन को हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। नेक्स्ट कम्स द सेल्फ रिलायंस। अब हम फूड सप्लाईज, कैपिटल इन्वेस्टमेंट और डेट, इसके लिए हम क्या थे, डिपेंडेंट थे, या हम कह सकते हैं फूड सप्लाई, फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन कैपिटल के लिए। तो जब भी ऐसा होगा तो फॉरेन इंटरफेरेंस बढ़ जाएगी हमारी पॉलिसीज में, और हमें क्या ध्यान देना है कि हम इनसे इंडिपेंडेंट हो, ताकि हम रिड्यूस कर पाए इनका डिपेंडेंस, अपना डिपेंडेंस इन कंट्रीज के ऊपर। द नेक्स्ट इज इक्विटी। इक्विटी में क्या है कि हम बात ध्यान कर रहे हैं कि जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है वो जो है एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाए, उनको बेसिक नीड्स सच एज फूड, डिसेंट हाउस, एजुकेशन और हेल्थ केयर मिल पाए। यू कैन पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस। फोकस वाले पॉइंट बेटा सभी पढ़ने आपने, ये हमें याद नहीं करना है, ठीक है जी, लेकिन आप इसको रीड कीजिए कि प्लान पीरियड क्या क्या रहा, और आपने यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है कि हर प्लान पीरियड पे मेजर फोकस क्या था, ठीक है जी। आप यहाँ पर वीडियो पॉज कर सकते हैं और इसको ध्यान से एक बार पढ़ सकते हैं। सिलेबस में बहुत रेयर चांस है ये एग्जामिनेशन के पूछा जाए, लेकिन हम वी कैन नॉट मिस इवन अ सिंगल वर्ड, तो आप इसको रीड जरूर करें। अब हमारे पास ये ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम एट 2011-12 प्राइसेस का ये डेटा हमारे पास गिवन है। हम देख रहे हैं फर्स्ट प्लान में 4.6 तक परसेंटेज तक हमारे पास ग्रोथ थी, जो फोर्थ प्लान में 3% पर रह गई और गिर गई। फिफ्थ प्लान में दोबारा से ही उठी और हाईएस्ट गई 6.5% पे एट्थ प्लान तक, ये फिर से कम हुई, फिर ये गई 7.6 विच वाज द हाईएस्ट अमंग ऑल द प्लान्स 10th प्लान तक, और 12th प्लान के अराउंड ये थी हमारे पास 6.7%। डियर स्टूडेंट्स, नोट माय वर्ड्स, ये जो फीचर्स एंड प्रॉब्लम्स इन इंडियन एग्रीकल्चर है ये ऑलरेडी हम पिछले यूनिट्स में पढ़ चुके हैं, क्लियर है जी, कि स्मॉल होल्डिंग्स थी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट थी, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है, लैंड टेन्योर सिस्टम है, स्मॉल होल्डिंग्स है, बैकवर्ड टेक्निक है, लैक ऑफ फाइनेंस है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि क्या हो रहा है कि अभी भी महाजन्स का, मनी लेंडर्स का, इन सब का रोल था, जागीरदार जमींदार का। तो हमें चाहिए था कि हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम हो, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब बात करेंगे क्या क्या पॉलिसीज, रिफॉर्म्स या मेजर लिए गए एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। तो पहला कहेंगे हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, दूसरे कहेंगे हम टेक्निकल रिफॉर्म्स। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को हम लैंड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, और इसमें पहले आते हैं हमारे पास अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरी, कि इंटरमीडिएरी को खत्म करो, क्लियर है जी। और यहाँ पर हम जब बात करते हैं इक्विटी इन एग्रीकल्चर की, तो ही हमें लैंड रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी, ताकि हम ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग को चेंज कर पाए। अब प्रॉब्लम ये थी कि काफी सारे लूप होल्स थे गवर्नमेंट की लॉज में, तो जिसकी वजह से हमारे ऊपर प्रॉब्लम हुई कि हम इक्विटी नहीं अटेन कर पाए। कुछ स्टेट्स में कर भी पाए, अराउंड 200 लाख टेनेंट्स जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है गवर्नमेंट के साथ। उसके बाद आ गया बेटा लैंड सीलिंग। अब लैंड सीलिंग क्या है, इक्विटी को प्रमोट करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स के साथ साथ हमें लैंड सीलिंग की जरूरत थी, कि एक इंसान कितने एकर्स ऑफ लैंड या कितने लैंड जो है वो अपने नाम रख सकता है। बात करेंगे प्रॉब्लम्स इन लैंड सीलिंग, वही लेजिस्लेशन में हर्डल्स थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स कोर्ट में गए, स्टे ऑर्डर लिया, डिले कर दिया इम्प्लीमेंटेशन को, और इतनी देर में उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम लैंड जो है वो रजिस्टर कर ली। सो द लूप होल्स जो थे विच वर एक्सप्लॉइटेड बाय द बिग लैंड होल्डर्स टू रिटेन द लैंड, तो लेजिस्लेशन की लूप होल्स थे। उसको प्लीज पॉज करें, और जितने भी ये फोकस पॉइंट्स हॉट क्वेश्चन है ये आपको रीड करने हैं। नेक्स्ट कम्स द टेक्निकल। बात करेंगे न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी की। तो पहला है बेटे द ग्रीन रेवोल्यूशन। 75% ऑफ जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर में, और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है कि हम हाई यील्डिंग वैरायटीज को यूज करेंगे, स्पेशली फॉर व्हीट एंड राइस। लेकिन इसको यूज करने के लिए हमारे पास ये चीज समझना जरूरी था कि हमें दो चीजों की खास रिक्वायरमेंट थी। एक तो प्रॉपर इरिगेशनल फैसिलिटीज और पानी होना चाहिए, दूसरी बात पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, और तीसरी बात इन सबका राइट कॉम्बिनेशन यूज करना। तो इंडिया ने अडॉप्ट किया हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम 1966 में, ठीक जी। और अब इंडिया को प्रॉब्लम आई फर्स्ट फेज में, यानी कि 1960s मिड से 1970s तक ग्रीन रेवोल्यूशन में, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड था सिर्फ पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक। लेकिन 1970s और 80s तक बहुत वैरायटी ऑफ क्रॉप्स में भी आ गया, क्लियर है जी, जो कि पहले व्हीट तक या राइस तक ही लिमिटेड था, और इससे हम इंडिपेंडेंस अचीव कर पाए और हम बाकी कंट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं रहे।
अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, पहला आ गया बेटे कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारे पास एक मार्केटेड सरप्लस या मार्केटेबल सरप्लस जो है वो अवेलेबल रहने का, और ज्यादा सरप्लस होने से सप्लाई बढ़ी और प्राइस कम हुए, तो जो लो इनकम ग्रुप है उनको बेनिफिट मिला, so that they can buy goods at lower price. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, ये पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा कि प्री रेवोल्यूशन पीरियड में हमें ये प्रॉब्लम थी लेकिन अब खत्म हो गई। एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी, इनकम भी बढ़ी और सेल्फ सफिशिएंसी भी बढ़ी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी, इन सब की जरूरत पड़ी, केमिकल्स की जरूरत पड़ी। क्लियर है जी? अब आगे शॉर्टकमिंग। द वेरी फर्स्ट वाज इंक्रीज इन डिस्पैरिटी बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज फार्मर्स। लार्ज फार्मर के पास ऑलरेडी बिग फार्मर्स के पास पहले ही पैसे थे, तो वो मिसयूज भी कर रहा था रिसोर्सेज का। तो हम कहते हैं कि जब भी सब्सिडी मिलती है किसी चीज को, देन वी स्टार्ट वेस्टफुल यूज ऑफ एनी रिसोर्स, राइट? इसलिए हम आगे डिबेट भी पढ़ेंगे, सब्सिडीज शुड बी गिवन और दे शुड नॉट बी गिवन। और अमीर अमीर हो रहा था, गरीब गरीब हो रहा था। पेस्ट अटैक का बहुत बड़ा रिस्क था, लिमिटेड क्रॉप्स थे हमारे पास और रीजनल इम्बेलेंस था। हम वीट, राइस, बाजरा और मेज, ये 4 ग्रुप्स पे फोकस कर पाए। धीरे धीरे हमने देखा कि टी, रबड़ और जूट में जो है हमारे पास ज्यादा इफेक्टिव रिसोर्स नहीं आ रहा है। बेटा अगर आप लाइन बाय लाइन ये सारे जो मैं वीडियो बता रहा हूँ रीड करेंगे, वीडियो पॉज करके उस पर ध्यान देंगे, तो आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलेगा एग्जामिनेशन में। रीजनल इम्बैलेंस में देखेंगे कि पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, यहाँ पर बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला ग्रीन रेवोल्यूशन का, लेकिन बाकी स्टेट्स में नहीं मिला। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिए, सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर दिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश किए ताकि हम पेस्ट अटैक को खत्म कर सकें। ये डिस्कस द डिबेट ओवर सब्सिडीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस हॉट्स क्वेश्चन को आप जरूर रीड करें कि क्यों सब्सिडीज देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। देनी इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि वेस्टफुल यूज जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है जी, लेकिन देनी इसलिए चाहिए ताकि हर बंदे तक वो पहुंच पाए, इक्विटी आ पाए। प्राइसेस एज सिग्नल्स, द फोकस पॉइंट। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये आपको सिर्फ रीड करना है एक बार, ठीक है जी, लॉजिक समझने के लिए। अब बात करेंगे पब्लिक सेक्टर की स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। अब बात करेंगे रोल क्या था। देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर की हमें जरूरत इसलिए थी क्योंकि हमारे पास 2 प्रिंसिपल रीजन थे और एक हमारे पास एडिशनल रीजन था। पहला था लैक ऑफ कैपिटल, प्राइवेट सेक्टर के पास उतनी कैपिटल नहीं थी। दूसरा, प्राइवेट के पास इतना इंसेंटिव नहीं था क्योंकि वो अपना ज्यादा वॉल्यूम पे नहीं खेल पाते थे, उनको लगता था कि यहाँ पे स्कोप नहीं है। एडिशनल है सोशल जस्टिस, प्राइवेट वाला हमेशा प्रॉफिट मेकिंग के ऊपर काम करेगा, कैपिटलिस्ट है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो सोशल